નમસ્કાર. સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલન આપણા ગુરુવારી મિટિંગના બધાને સ્વાગત છે. આપણે મિટિંગ શરૂ થતાં પહેલાં, ચર્ચા શરૂ થતાં પહેલાં આપણે એક એમએસડીમાં એક સભ્ય તરીકે માનીએ એ આવતા જતા હતા. આપણે ખ્યાલ હશે નાનુભાઈ વૈદ્ય ઉંમર 80 ઉપર થઈ ગયા હતા. જાણીતા સ્વિમર, 83 પણ તમે કાયમ એમને સાયકલ ઉપર જોજો. એમને જ્યારે આવે એટલે સાયકલમાં આવે અને સ્પોર્ટિંગ ડ્રેસમાં આવે અને કહે કે તમે કેમ સાયકલમાં ફરફર કરી રહ્યા છો? એને કારણે મને હું એ ફરતા રહેવા માગું છું, ઘરે રહી જાઉં તો ખતમ થઈ જઈશ. એ રીતે એમને બધું લાઇવલી હતા, બધું બહુ ઇન્સ્પાયરિંગ હતા. એઝ એ સ્પોર્ટ્સમેન કદાચ એ એસકે કોલેજમાં પીટી ટીચર તરીકે એમને કારકિર્દી શરૂ કર્યા હતા. પણ એ વખતે પીટી ટીચર હતા, પણ એ વખતે નવનિર્માણ આંદોલન પણ ચાલતો હતો. એમાં એક્ટિવલી જોડાયા હતા અને ક્યારેક વાત કરે. અને પછી તો રિટાયર્ડ થયા અને સ્વિમર હતા. અને ડૉક્ટર સાહેબ પણ જાણે સ્વિમિંગ પુલમાં આવે એટલે એ જે લિવિંગ સોલ આવે એટલે હલ્લા ગુલ્લા કરે, એમને શીખાડે એમને સ્વિમિંગ કરવાનું, ડાઇવિંગ કરવાનું. કોઈની જાતે પહોંચી જાય તો એમ કેમ કરે છે, તો એમ કેમ કરે છે. એકચ્યુઅલી સ્વિમિંગ પુલમાં લઈ જનાર માણસ તો નાનુભાઈ વૈદ્ય હતા. મને લેટ એજમાં મને લઈ ગયા સ્વિમિંગ પુલ ઉપર. પણ ઓલ ધ ટાઈમ બહુ એક્ટિવ રહ્યા. પણ નવનિર્માણ મુવમેન્ટ પછી પણ એમને જે આપણે અહીંયા ચળવળ ચાલી એ ચળવળ સાથે પણ જોડાયા. છેલ્લે જ્યારે અન્ના હઝારેનું પણ ચાલ્યું એ વખતે થોડું ગડબડ ખાતું હતું. પણ જ્યારે એમને ક્લેરિટી થઈ પછી અન્ના હઝારેના મુવમેન્ટના સાથે કાયમ આપણે જે વિચાર કરતા હોઈએ છીએ એમાં માન્યા. અને કાયમ સ્વિમિંગ પુલનું એમના એટલે એન્ટી મોદીનું છાપ પડી ગયું હતું. એટલે એને કારણે થોડું તકલીફ પડતી હતી. એટલે પણ એક સ્પષ્ટ બોલે, ડરે નહીં, ઊંચા અવાજથી બોલે. ભલે 5 માણસ કે 10 માણસ એને ટીકા ટિપ્પણી કરતા હોય તો પણ ડગે નહીં, બોલતા થાય. એવા એક લિવિંગ માણસ આપણા વચ્ચે હતા. અને એ ક્યારેક આવી જાય આપણે અહીંયા, પાછળ બેસે અને ક્યારેક હાથ ઊંચા કરીને વાત કરે અને પાછી બહાર જઈને બેસે. પણ આપણે કાયમનું આપણું જે વાત આપણે જે કરીએ છીએ એ છેલ્લે અત્યારે જે પોલિટિકલ એક અમાવાસ્યા ચાલી રહી છે, આપણે માનીએ સંક્રાંતિ ચાલી રહ્યા છે, એ વખતે એક વોઇસ હતા, એક સિટીઝન્સ વોઇસ. ઓર્ડિનરી પીપલ તરીકે પણ સિટીઝનની અંદર જે વાત કરવાનું જે હોય છે એની અંદર કળા હતી, એ કરતા હતા. એટલે એવા નાનુભાઈ વૈદ્ય આપણે વચ્ચે રહ્યા નહીં. ગયા ગુરુવારે એને કદાચ 10 વાગે કે 11 વાગે એમને હાર્ટ એટેક થયો અને એ દિવસે એ ગુજરી ગયા. આપણે તો જઈ ના શકીએ એ દિવસે. એ દિવસે આપણે એમએસડીની મિટિંગ ચાલતો હતો. આપણે યાદ કરીને આપણે એમને થોડું થોડું મૌન પાળીએ એટલા માટે બધાને હું રિક્વેસ્ટ કરી રહ્યો છું. એમને તો સ્વિમિંગ પુલમાં શનિવારે 9:30 વાગે એમને શોક સભા રાખ્યા છે. બધા પુષ્પાંજલિ પ્રોગ્રામ રાખ્યા છે ત્યાં સરદાર પટેલ સ્વિમિંગ પુલ સ્ટેડિયમ. શનિવારે પરમ દિવસે બધા સ્વિમર જે બધા જે છે ને ભેગા થઈને આપણે બધા પુષ્પાંજલિ આપીશું. આજે આપણે ચર્ચાની વિષય વસ્તુ જે છે એને તિલન સાહેબ ચર્ચા કરવાના જે છે. તિલન સાહેબને બધા જાણે છે. આપણે એ બહુ જાણકાર હોય, બહુ ઊંડા અભ્યાસ કરતા હોય છે. પણ એને થોડું બોલવા માટે એ હેઝિટેટ થતા હોય છે. અને ઘણા લોકો હોય છે, ઘણા જાણકાર માણસો બોલવા ઈચ્છતા ના હોય, એ જાણકાર ના હોય બોલવા વધારે ઈચ્છતા હોય. એટલે એ પ્રકારનું આપણે 2 ટાઈપ ઓફ પર્સન્સ વિલ ફાઇન્ડ. તો તિલન સાહેબ સેકન્ડ કેટેગરીમાં હોય. એ જાણતા હોય, એને બોલવાની ઈચ્છતા ના હોય, બટ હી ઇઝ વેરી ડીપ ઇન ધ સબ્જેક્ટ. એટલે કદાચ ચોપડી લખી શકે, આર્ટિકલ લખી શકે. પણ આજકાલ આપણે તો ચોપડી લખીએ, આર્ટિકલ લખીએ તો ક્યાં છપાવવાનું?
એ તો ગુજરાતમાં છે, અંગ્રેજીમાં કોઈ તો થાય નહીં, અંગ્રેજીમાં લખી શકે. દિલ્હી વિલ્લી બોમ્બે ટોમ્બે હોય તો ચાલે બધું. આજે તિરંસાઈ ચર્ચા કરવાની છે. વાગનર ઇસ્યુ, વાગનર આપણે વાગનર તરીકે આપણે જાણીએ છીએ, રશિયાના જે બનાવ બની ગયો. એટલે હું એક ચર્ચા એ તો કરશે. અને એના પહેલાં હું ખાલી એક માહિતી ખાલી આપું. અત્યારે 2024માં જે અમેરિકન જે પ્રેસિડેન્ટ નોમિની જે છે એને એક બેન છે, શી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ કોન્ટેસ્ટ. એનું નામ છે ના 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 એ સમથિંગ વિલિયમ સમથિંગ કોઈ નામ છે, પ્રેસિડેન્ટનું નામ જે છે મેરિયમ વિલિયમ સમથિંગ એવું નામ છે. શી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ કોન્ટેસ્ટ પ્રેસિડેન્શિયલ પોલ. એને એક 100% इंटरव्यू आया था इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स हैं हाँ हाँ. ये बात मैं जो कहना चाहूँगा कि इसमें मीटिंग शुरू होने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अमेरिका में आने वाले जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है 2024 को, वहाँ एक लेडी कैंडिडेट जो हैं उनका नाम सा मेरियम विलियमसन ऐसा नाम है. उन्होंने एक शॉर्ट इंटरव्यू में बताया, उन्होंने अमेरिका का इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का उन्होंने एक्सपोज किया. तो 80 देश में अमेरिका के 313 मिलिट्री बेसेस है, 750 मिलिट्री बेसेस इन 80 कंट्रीज. सारा दुनिया में जो 80 देश है 750 मिलिट्री बेसेस उनका डिफरेंट एरिया में है. ये भी चाइना के साथ जो अमेरिका का जो चल रहा है, जो जिस प्रकार का एक ग्लोबल अमेरिका मोदी को भी इसमें शामिल करने का कोशिश हो रहा है, पुतिन और अमेरिका भी जिस तरह से पोलराइज हुए हैं, तो ये परिस्थिति में अमेरिका वर्सेस चाइना, अमेरिका वर्सेस रशिया, रशिया चाइना अमेरिका और इंडिया में इसको शामिल करने का, क्वाड को लाने का, तो ऐसे स्थिति में जो टेंशन खड़ा की जा रही है, तो अमेरिका को, चाइना को कॉम्बैट करने के लिए, फेस करने के लिए अमेरिका का कितना मिलिट्री बेस चाहिए? तो उन्होंने बताया 313. हाउ मेनी? 313. 750 मिलिट्री बेसेस है. तो चाइना को कॉम्बैट करने के लिए अमेरिका के 313 मिलिट्री बेसेस चाहिए. तो ये है टोटल डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, वार के ऊपर उनका इकोनॉमी चलता है, वार के ऊपर में देश की राजनीति चलता है, इलेक्शन चलता है, इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स के आधार पर जो चल रहा है. और खाली पीस की बात करते हैं, गले में मिलते हैं. आप कितना आर्म सौदा करोगे, कितना वेपन्स लोगे, कितना नहीं लोगे, इसकी बात चलती है. तो अब फिर वहाँ बहुत सारे देश में रेगुलर आर्मी नहीं है. इन अमेरिका ऑल्सो देयर आर नो रेगुलर आर्मी. ईरान का, अफगानिस्तान का जब वार हुआ था उस टाइम पे, इराक के टाइम पे वार रहा था, उस टाइम पे पता चल गया था कि रेगुलर आर्मी नहीं है, हायर एंड फायर है. टेम्पररी के 2 साल के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए उनको लिया जाता है, उनको फायर कर दिया जाता है. फिर बाद में होम गार्ड होके या सिक्योरिटी गार्ड बन के वो काम करते हैं. अमेरिका में भी करते हैं और बाकी देश में भी करते हैं. शायद ये जो अग्निवीर का बात जो है वो भी शायद रशिया से ही आया था. तो ये रशिया भी, जो रशिया के नाम पे जो ठिप्पा लगा हुआ है कि रशिया सोशलिस्टिक रशिया, वो सोशलिस्टिक रशिया अभी नहीं है. ये पूरा एक पूंजीपति इंपीरियलिस्ट पावर, सुपर पावर के हिसाब से आया हुआ है, और वो भी चाइना के साथ मिलकर एक ग्लोबल डिवीजन में पड़ा हुआ है. तो ये जो, तो इंटायर वर्ल्ड में जो है ये वार, नो पीस, और वार का प्रोडक्शंस, वार के लिए पैट्रियोटिज्म खड़ा करना, नेशनलिज्म तो है ही है, लेकिन पैट्रियोटिज्म खड़ा करके वार लगाना, ये उनकी धंधा है. लेकिन ये जो मिलिट्री के पीछे जो रशिया, जो अभी जो लास्ट जो घटना जो रशिया में जो हुआ कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री का जो एक ग्रुप है वागनर, ये मिलिट्री के अंदर मिलिट्री है, प्राइवेट मिलिट्री है, जो वहाँ का रशियन मिलिट्री को चैलेंज किया, उसको सामना करते हुए पावर लेने की कोशिश भी में लग गया था. पूरा स्टोरी अभी भी आना बाकी है, लेकिन वो डिफेंस मिनिस्टर को चेंज करना, वो करना. लेकिन ये सब जो है 21 ओलिगार्क रशियन क्रांति होने के बाद 21 ओलिगार्क जो हैं उनकी करोड़ों रुपया यूरोपियन बैंक्स में सड़ रहा है. और ये लोग इतना बड़ा मिलिट्री का एक बड़ा ओलिगार्क बन के बैठे हुए हैं, मिलिट्री का एक जुंता बन के बैठे हुए हैं, वागनर जैसा. और ये वागनर वाला जो है साउथ अफ्रीका में रशियन की इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है. और काफ़ी शायद सीरिया में भी जो वार हो रहा है, ऐसे ही प्राइवेट आर्मी
जाके रशियन के टिप्पा लगा के रशियन के फ्लैग के नाम पे करते होंगे, जैसे अमेरिका वाले भी करते हैं। तो ये सारे चीज़ एक नया चीज़ लोगों के सामने आ रहा है, जो खाली अमेरिकन डेमोक्रेसी, रशियन जुनता, चाइनीज़ बात, ये सब बात चलते रहता है। इनके पीछे जो है एक प्रकार का एक इंडस्ट्रियल मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स की जो बात 1962 में जो आइजनहावर बोले थे, वो आइजनहावर की बात आज एकदम सामने नेकेडली आ रहा है। सो पीपुल शुड बी अवेयर कि ये मिलिट्री बजटिंग करना और वार करना, वार क्या इसेंशियल है? रशिया के साथ यूक्रेन का वार क्या इसेंशियल था? क्या इतना ज़रूरी था वार करने के लिए? अगर वार हो ही गया तो मुझे लगता है अमेरिका की जितना माइटी है तो यूक्रेन को तो ख़त्म कर सकता है। तो ये कैसे फटाकाबाजी हो रहा है? ये वो एक भेज दिया और वो एक भेज दिया, फिर बाद में पेपर में चला ये जो चलता रहता है। तो ये क्या वार, टोटल वार करना चाहते नहीं, ताकि थोड़ा थोड़ा चलेगा, थोड़ा थोड़ा बजट चलेगा और आपका नेशनलिज्म पैट्रियटिज्म चलता रहेगा और देश को उल्लू बनाना चलता रहेगा। तो ये जो यहाँ भी हमारा इंडिया में भी इसको, इस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश हो रही है। लेकिन रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, उसकी जब समाचार बाद में आया तो हम लोग सब शौक हो गए कि अमेरिका, रशिया में ऐसा कोई वागनर ग्रुप है जो रशिया ने रेड आर्मी, रशिया का आर्मी मतलब जो रेड आर्मी, अभी भी इसको डिसमेंटल नहीं किया गया, उस रेड आर्मी को चैलेंज कर सकता है। तो यही बात आज हमारे बीच में बात चल रही है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तिलन साहब, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़। हाँ बैठी मैं दे रहा हूँ। अच्छा, चलो हमारे गले में हार डाल देंगे। शुरू करो। तिलन साहब बात रखे उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। तिलन साहब का बस 2 दिन के अंदर 80 साल के होने वाले हैं और ये वेलकम ड्रिंक 80, हाँ उनकी ओर से है। और अभी हम डिस्कशन के टाइम पे आइसक्रीम भी मिलेगा तिलन साहब की ओर से। तो हम एडवांस में मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मेरे ख्याल से रथ साहब ने काफ़ी कुछ कह दिया है। मेरा काम हर सप्ताह लेके आते हैं। हाँ बिस्किट तो हर रोज हर आप सप्ताह लेते ही हैं। उनकी ओर से बिस्किट रहते हैं, जो मैं मजा और बड़ा चाव होता है चाय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रथ साहब ने मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया और काफ़ी एक्सप्लेन जो मैं करना चाहता था उन्होंने अपने अंदाज में पेश कर दिया है। जहाँ तक वार का सवाल है, मेरे ख्याल से वार तो जब से दुनिया या सृष्टि बनी है वो चलता आया है। अगर हम आप देखें तो हमारे जो सारी हिस्ट्री जो है, हमारे सारे देवी देवता जो हैं वो सब हथियार लेके उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। भगवान विष्णु ले लो, कृष्ण ले लो, राम ले लो, काली देव, सबके पास हथियार हैं। क्या हथियार ज़रूरी हैं? भगवानों के पास तो, इंसानों के पास तो नॉर्मली ज़रूरी होंगे। लेकिन उसका दूसरा एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि हमारे हथियारों की ज़रूरत है कि शांति मेंटेन की जा सके। अब शांति के लिए हथियार चाहिए, ये भी एक प्रैक्टिकल चीज़ कही गई है कि अगर इराक के पास एटॉम बॉम्ब हथियार होता तो अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ती कि हमला कर सके, क्योंकि उनको मालूम है रिटेलिएटरी फोर्सेस में अगर आएंगे तो बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। इसलिए हथियार का होना एक शांति के लिए ज़रूरी है कि नहीं, इसके बारे में चर्चा बहुत हो सकती है। एक ने बहुत कहा है कि आर्मी और पुलिस में फ़र्क क्या है। उसने लिखा है कि आर्मी इज़ टू डिटर एंड डिफीट आर्मी। दुश्मन को हराने के लिए और डराने के लिए आर्मी की ज़रूरत होती है, सेना की ज़रूरत होती है। और पुलिस को डी एस्केलेट द वायलेंट सिचुएशन, जब हालत लड़ाई की हो तो उसको शांति लाने की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि पुराने ज़माने में राजा की सेना होती थी, वो दोनों काम करती थी, लेकिन इस वक्त एक ही काम करते हैं। ये जो प्राइवेट सेना का कहा वो देखा जाए तो वो आज का नहीं है। हमारा जो आइडिया है, अगर हम पहले भी जाएं तो लड़ाई जो है फील्ड में नहीं लड़ी जाती है, फील्ड के बाहर भी लड़ी जाती है। दूसरों को खींचा जाता है, उनको तोड़ा जाता है। हमारे कॉन्सेप्ट में विष कन्या करके एक कॉन्सेप्ट था कि बाहर भेज के जो हमारे दुश्मन हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके।
और हमारी तो माइथोलॉजी की बात है, लेकिन अब हिस्टोरिकली देखें तो मुझे जब हिस्ट्री देखी तो सबसे पहले जो याद आया कि प्राइवेट आर्मी किसकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट आर्मी थी। वो कंपनी किस तरह बनी? रॉयल चार्टर ऑफ इंग्लैंड से। क्योंकि क्या होता था कि अगर इंग्लैंड के पास इतनी इंडस्ट्रियल पावर आ गई थी, इंग्लैंड, फ्रांस, डच, पुर्तगाल, स्पेन, कि वो इतना इंडस्ट्रियलाइज हो चुके थे कि उनको प्रोडक्ट कहाँ डालना है, उनको व्यापार करने के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की ज़रूरत थी। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी कैसे बन सकती हैं? जो अगर पार्लियामेंट में कंट्रोल करना है तो वो डिबेट ही करते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने यही कहा कि भाई कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई जाएं या कुछ ऐसे बन जिसको पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं रहे। तो उन्होंने कहा चलो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे बहुत बार रॉयल डच का ईस्ट इंडिया डच कंपनी बनी, फिर पुर्तगाल की कंपनी बनी, और सारे के सारों को व्यापार करने के लिए दुनिया भर में भेज दिया गया। इंडिया भी उसमें एक कंट्री था। अब कहा जाए कि भाई ये व्यापार करने आए थे कि लड़ाई लड़ने आए थे? कहने को तो ये व्यापार करने आए थे, लेकिन अगर उसका चार्टर देखा जाए तो भाई वो सब चीज़ करेगी जो व्यापार करने के लिए ज़रूरी है, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं यू विल डू ऑल द थिंग विच आर नेसेसरी टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। और देखा जाए तो रॉयल एयरफोर्स, रॉयल आर्मी, एयरफोर्स तो उस ज़माने में थी नहीं, आर्मी और नेवी पूरी की पूरी हिंदुस्तान के आजू बाजू तैनात थी और एक मोमेंट के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्विस देती थी। तो अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भी एक इसी तरह की एडिशनल सो कॉल्ड पीएमसी जिसको बोलते हैं, प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज, इनका चार्टर उसी तरह बनाया गया। ये रिफाइन होते गए। अब 71 के अंदर हम आते हैं तो जो बंगला वाहिनी बनी वो क्या चीज़ थी? एक इरेगुलर आर्मी, उसके सारे सोल्जर्स हिंदुस्तान के जनरल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर जनरल अपने बंगाल साइड पे उनको ट्रेन करके वापस भेजते थे। वो रेगुलर आर्मी नहीं थी। वो भी इसी तरह, और उसी आर्मी ने इंडियन आर्मी को बहुत सारी हेल्प करी, और ये बहुत सारी इतनी हेल्प करी। और जब वॉर लड़ी जाती है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि वॉर फील्ड पे नहीं लड़ी जाती है, फील्ड के पीछे भी लड़ी जाती है। और इसकी वजह से इसी स्पेशल पीछे लड़ने के लिए दूसरी कंपनियों ने बनाई, जिसको इंग्लैंड बोलता है SAS, स्पेशल एयर सर्विसेज, कि अगर आदमी की अब वॉर आपकी फील्ड पे चल रही है, आपको वॉर की सप्लाई लाइंस तोड़नी है, दूसरी चीज़ें तोड़नी है, तो आप आर्मी के पीछे उतारिए आदमी। तो स्पेशल एयर सर्विसेज, जिनके पास मल्टीपल टैलेंटेड सोल्जर होते हैं, वो लगाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे तो जो इज़राइल ने जो अपनी इज़राइल हासिल किया, बेन कुरिया करके मेरे ख्याल फर्स्ट प्रेसिडेंट था, वो भी उसी तरह का ही था। ये जो सारी स्प्लिंटर आर्मी बनी है, जब इनका पर्पस हल हो जाता है तो वो एब्जॉर्ब की जाती हैं रेगुलर आर्मी के अंदर। लेकिन ये जो प्राइवेट आर्मीज़ हैं एक लिमिटेड पर्पस के लिए हैं। अब प्राइवेट आर्मीज़ का रोल तो देखा जाए, अमेरिका में इनको डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते हैं। इनका रोल क्या है? और ये कम से कम इस वक्त 50 देशों में ऐसी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सिवाय एंटार्क्टिका के हर देश के पास कोई ना कोई इस चीज़ की संस्था है, वैगनर टाइप के लिए। क्योंकि वैगनर की संस्था को यही कहा गया था कि जब मंसूबा बांधा था रूस ने कि भाई हम इसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, यूक्रेन के ऊपर, और जब डेटा आया कि भाई 2 लाख सोल्जर्स बेलारूस से दूसरे बॉर्डर्स पे लड़ाई हैं, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, मिलिट्री जनरल्स वगैरह, उन्होंने ये कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा, ये हमला हो नहीं सकता। कि उनका कहना है 2 लाख की फ़ौज इतने बड़े कंट्रीज़ के ऊपर, 2 लाख की फ़ौज इस कंट्री के वार मशीनरी को हैंडल नहीं कर सकती। ये पुतिन का कोई दूसरा ही इरादा दिखता है। क्योंकि जो इंडियन मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने जो लेख लिखे मैगज़ीनों में, उन्होंने कहा एक रेशो होती है जिसको कहते हैं कि एक्टिव फाइटिंग सोल्जर्स एंड सपोर्टिव सोल्जर्स, कि भाई एक फाइटिंग सोल्जर को सपोर्ट सर्विस कितनी चाहिए। और उन्होंने इस रेशियो पे कहा कि 10 आदमी चाहिए एक फाइटिंग सोल्जर्स के लिए। अगर 1 लाख की फ़ौज आपको लड़ रही है तो उसके पीछे कम से कम 6-7 लाख
सपोर्ट सर्विस चाहिए, व्हीकल मेंटेनेंस के लिए, पेट्रोल सप्लाईज के लिए, खाने के लिए, वॉशिंग के लिए, ऑल सॉर्ट्स ऑफ जो सर्विसेज हैं। तो क्या अगर 2 लाख की फ़ौज है तो 30-40 हज़ार के ऊपर यूक्रेन इनके बस का नहीं है। बिकॉज यूक्रेन को आप देखें तो वो एक कहा जाए सबसे एडवांस कंट्री यूरोप में गिना जाएगा, एक्सेप्ट जर्मनी। उसकी इंडस्ट्रियल पावर, मैन्युफैक्चरिंग पावर जितनी भी ये गिनेंगे, और उसकी डिफेंस इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है कि 20,000 लोगों से नहीं कंट्रोल होगा। तो ये क्या है, बहुत सारी अटकलें लगाते रहे। उससे पहले मैं एक बात पीछे जाना चाहूँगा कि रशिया को क्या मुसीबत पड़ी थी कि यूक्रेन को जाके हमला करे। रशिया की ऐसी क्या हिस्ट्री है कि जो उसको, रशिया के पास 180 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और इसके पास 6 लाख है। दैट मीन्स 4% इसके पास रशिया का एरिया है। मिनरल वेल्थ 1% नहीं है। तो फिर इसको क्या रशिया को तकलीफ़ थी? अगर आप रशिया को देखा जाए, आज कम्युनिज़्म है और रशिया का कम्युनिज़्म अलग है, चाइना का कम्युनिज़्म अलग है, इंडिया का कम्युनिज़्म अलग है। तो पहले कहते थे भाई जो मार्क्सिज़्म है, कार्ल मार्क्स जर्मन था, लेकिन उसने सारी रिसर्च अमेरिका में और इंग्लैंड में बैठ के करी थी कि वर्कर का रोल क्या होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स जर्मन और अमेरिका में काम करके, बट सबसे ज़्यादा उसका फला फूल रशिया में। तो रशिया ने मार्क्सिज़्म एक्सपोर्ट किया। तो अब दूसरों ने कहा भाई रशिया ने मार्क्सिज़्म एक्सपोर्ट तो किया, पर रशिया ने खुद क्या फॉलो किया वो कह नहीं सकते। और आजकल की जो नए लोग हैं वो कहते हैं पुरानी रशिया ने मार्क्सिज़्म एक्सपोर्ट किया और पुतिन का रशिया जो है वो पुतिज़्म एक्सपोर्ट कर रहा है। और पुतिज़्म का एक्सपोर्ट जो है वो साफ विदित है हमारी इंडियन पॉलिसी से। और जितनी भी जब सो कॉल्ड द मिडिल इनकम और द लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, वो सारी की सारी पुतिनिज़्म फॉलो कर रही हैं, जो मानते नहीं हैं। लेकिन जिन्होंने अभी मुझे साहब ने कहा ओलिगार्च, सो कॉल्ड धनी लोग जो हैं उनके दोस्त हैं, यही रशिया ने किया जो किया, यही चाइना ने किया। और हमारे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी और जिनका नाम लेते हैं, थ्योरी वही है कि जो लोग पैसा बना वेल्थ जनरेट कर सकते हैं उनको करने दो। इनफैक्ट यही थ्योरी लेनिन की और स्टालिन की भी थी। जब लेनिन के टाइम पे डील बहुत दी गई तो स्टालिन ने कहा ये लेज़ी ब्लडी वर्कर्स, इनको जब तक तुम डिसिप्लिन एनफोर्स नहीं करोगे तुम्हारे को मटेरियल प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। सवाल ये, उसको भी यही रियलाइज़ हुआ कि ये जो टू मच जो प्रो वर्कर थ्योरीज है जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देंगे उसमें तरक्की नहीं होगी। उन सवाल यह रशिया को क्यों खुन्नस आ गई कि हम तरक्की नहीं कर सकते, उनको तरक्की करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। उसके लिए अगर आप देखिए रशिया कम्युनिस्ट नहीं था और ना ही अभी भी अगर ढंग से कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे देखा जाए तो वो कम्युनिस्ट नहीं है। रशिया 300 साल तक इम्पीरियल फोर्स रहा है। 1505 में जब इवान यहाँ का राजा था, जिसको बोलते हैं इवान द टेरिबल, उसने 1505 से लेके ये नींव रखी थी रशियन एम्पायर की कि भाई हम करेंगे। और 1650-1700 के आसपास उसके बाद था पीटर द ग्रेट, उसने सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किया एम्पायर। उसके एम्पायर की आप लिमिट देख सकते हैं, चाइना के बॉर्डर तक था और इस तरफ अमेरिका तक पहुंचा हुआ था वो। आपको ख्याल नहीं शायद होगा कि अमेरिका की जो स्टेट है अलास्का, वो रशिया की थी 1860 तक, और स्टेटें ऐसे बेची जा, और इधर हवाई जो है वो भी रशिया की थी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पीटर ये रामनलोव फैमिली, जो रोमन लोव ऑफ फैमिली जो थी, ये उसकी कंट्रोलिंग फैमिली थी ये रशियन एम्पायर की, और उसने 300 साल तक रशिया के ऊपर राज किया। जो अलास्का जो है 1860 में अमेरिका को $1 मिलियन में बेच दी गई थी, और ओहियो भी ऐसे ही अमेरिका ने खरीदी थी। सो अमेरिका के जो बना हुआ है कुछ खरीद के, कुछ जीत के, कुछ अपने आप बने हुए हैं। सो इतनी पावर होते हुए अमेरिका के पास एक है, सॉरी रशिया के पास है, फिर क्या तकलीफ़ है रशिया फिर भी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो जापान ने उसको बुरी तरह हरा दिया। अब जापान कितना देश है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जापान हार गया, तो जब जो डींगे मारते रहते हैं राजा, हम ये हैं और हम वो हैं, इस सारे की सारी राजा चाय की किरकिरी हो गई। और उस टाइम पे
थोड़ी पार्लियामेंट थी, थोड़ी रूलिंग पार्टी थी, सोशल वर्कर और यूनियन थी लेनिन की। उसने बड़ा ज़ोर मारा और हंगामा करके जो उस टाइम का राजा था निकोलस, उसको गद्दी से उतार के देश निकाला किया और उसको फायरिंग स्क्वाड के सामने गोलियां मार दी गई। और उसका बाद में जो होते हैं कब्र में दफनाया गया, 90 साल के बाद उसको स्टेट ऑनर दिया गया। तब तक उसको स्टेट ऑनर तक नहीं दिया था लेनिन ने। सो बेसिकली जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, इनके कई साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, कई चर्निंग इफ़ेक्ट्स होती हैं, और हर एक लड़ाई के बाद आप अगर देखेंगे तो रीअलाइनमेंट होती है। और रीअलाइनमेंट की वजह से ही डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की होती है, इकोनॉमिक्स की होती है। आप सबके वार लॉर्ड्स की हिस्ट्रियाँ देखिए। पहला तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अलेक्जेंडर, उसने, और दूसरी इनकी खासियत है, जो जितने भी महान नेता हुए हैं, महायोद्धा हुए हैं, कोई स्कूल कॉलेज में जाके नहीं पढ़े थे, वो सेल्फ टॉट हुआ करते थे। तो ये सब अलेक्जेंडर को क्या दिमाग से, छोटे छोटी लड़ाइयाँ, छोटे छोटे एम्पायर लेके क्या बैठे हुए, सारी दुनिया को एक सेंटर में ले आना चाहिए। उस आइडिया को लेके 18 साल का हिटलर निकल पड़ा था दुनिया जीतने के लिए। अलेक्जेंडर, सॉरी, सिकंदर मौला, ओ सॉरी माय गॉड, मैं नेक्स्ट उसका नाम लगाने वाला हूँ। तो अलेक्जेंडर जो है वो निकला, और उसके बाद वो हिंदुस्तान तक पहुँचने के बाद उसने वापस चला गया। अब ये सवाल यह कि अलेक्जेंडर की फ़ाइट पोरस से क्या थी। हमारी हिस्ट्री एक चीज़ हमें पिक्चर देती है कि बड़ाई लड़ाई से लड़े और आगे नहीं बढ़ सके। दूसरी तरफ ये आता है जो थर्ड, जो वहाँ के उस ज़माने के, जिसको बोलते हैं ना ट्रैवलॉग, यात्री आते हैं और लिखते हैं कि उन्होंने कहा हिंदुस्तान की गंदगी इतनी थी, हिटलर के सोल्जर ने कहा हम लड़ाई में नहीं, बीमारियों से मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने आगे आने से इनकार कर दिया और सिकंदर को पर फोर्स पीछे जाना पड़ा। अब यही इस चीज़ को अलेक्जेंडर की जो जर्नी टू दी ग्रेट वॉर है, ये ग्रीक हिस्ट्री में क्या लिखते हैं अलेक्जेंडर के बारे में। ग्रीक हिस्ट्रियों की बुक्स में ये लिखा जाता है कि सिकंदर हार गया था। नाउ अब इतना देखिए कि एक चीज़ जो हम हिस्ट्री में देखते हैं, दूसरा कंट्री अलग हिस्ट्री से देखता है। और अलेक्जेंडर के थॉट्स तो हम जानते ही हैं। नेक्स्ट मुझे अच्छा लगा, जिनको मैं दाद दूंगा, नॉट फॉर द रॉन्ग रीज़न, फॉर द राइट रीज़न, अलेक्जेंडर अपना हिटलर, उसकी आप हिस्ट्री देखिए। वो भी, ये सारे के सारे एक खासियत है, ये स्ट्रीट फाइटर हैं, गली गुमड़ी में लड़ते मरते रहे हैं, लोगों से मारपीट करके ऊपर आए हैं। हिटलर भी ऐसा था, पुतिन भी ऐसा था, अलेक्जेंडर भी ऐसा था। सारा स्ट्रीट फाइटर्स रहे हैं, और उस फाइटिंग में से इनको पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है, यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और फिर उनके थॉट्स देखें तो वो काफ़ी पढ़े थे। हिटलर की अगर आप देखें कि भाई उसके दिमाग के अंदर क्या चीज़ थी। हिटलर ने जेल में 7-8 साल रहा। उसने एक बुक लिखी थी, माइन काम्प, दैट मीन मेरी आत्मकथा। अगर आप उस बुक को पढ़ें तो आपको लगेगा कि हिटलर ने कोई गलती नहीं करी है। उसने इंडिया के बारे में काफ़ी ख़राब ओपिनियन दिया है कि मेरी समझ में नहीं आता कि इंग्लैंड इंडिया के ऊपर कैसे रूल कर पा रहा है, इतना छोटा कंट्री इतनी बड़ी हुकूमत कैसे चला रहा है, कुछ नहीं कर पाते इंडियंस। तो उस माइन काम्प में आप पढ़ेंगे तो उसके थॉट्स काफ़ी अच्छे लिखे हुए हैं। दूसरा जो हमारा जो इंडियन बेस्ट पहुंचा था या नहीं पहुंचा था, अशोका द ग्रेट, अगर आप उसको देखें, उसको भी कहीं जोश आ गया था, कालिंगा के बाद मैं आगे पूरा चलूँगा, और कहीं बीच में से वापस आ गया। भाई कालिंगा में बहुत युद्ध हुआ, बहुत मारे गए, उसको ग्लानि हुई, ऐसी हत्या नहीं करनी, ऐसी हत्या नहीं करनी, और उस टाइम के बाद इंडिया हमेशा पैसिव हो गया। अब सवाल ये है कि अशोका को ये लगा कि भाई मैंने बहुत लोगों का मानव वध किया है इसलिए, या उसके ऊपर जो दूसरे थॉट्स भी उनको उस टाइम के लिखे गए हैं कि जो जैन साधु और बुद्ध साधु थे, उसने उनको ब्रेन वॉश कर दिया अशोक को कि भाई तू क्या करेगा, क्या लेके जाएगा। नॉर्मली हमारी जो पैसिव है जो चीज़ें हैं, और वो पैसिविटी हमारे को अभी तक जैन और बुद्धिज़्म की जो थ्योरी है, मिलिटेंसी नहीं आ पाई। तो इसके लिए मैंने एक चीज़ देखी है कि भाई जो बड़े बड़े एम्पायर लोगों ने बनाए वो कितने बड़े थे। कहते बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर था, डायनेस्टी है, और उसका असर प्रेजेंट जो लीडर हम देख रहे हैं
उन पे क्या है। ब्रिटिश तो आप जानते ही हैं, मैं कहने की ज़रूरत नहीं, किसी ज़माने में 28% एरिया दुनिया का उनके कंट्रोल में था। वो 1920 के आसपास हालत है जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई, 28% एरिया। और जब रशियन पीटर द ग्रेट और से निकोलस वगैरह, ये 1895 में रशियन एम्पायर की पीक थी, उसके बाद ये छोड़ना शुरू हो गया। वो भी 17%, 17% एरिया उसके पास था। और रशियन की एक मैं अभी बाद में पढ़ूंगा इस चीज़ के ऊपर, ये कुछ जो हमारे डिक्टेटर्स होते हैं ना, इनको कुछ थोड़ा दिमाग में कहीं ना कहीं कीड़ा लगा हुआ होता है, ऑब्सेसिव कंसेप्ट जो कह लो। पुतिन को ये गया कि हमारे जो हमने जापान से जो मार खाई वो किस वजह से खाई। हिटलर को ये था कि हम वर्ल्ड वॉर 1 में क्यों हारे, उस हार का बदला लेने के लिए उसने सारा का सारा प्रपंच रचा कि मैं बदला लेके रहूँगा। पुतिन का यही है कि जापान जैसे कंट्री से जो तुम्हारी एरिया का 1% नहीं है, 4% तुम्हारी जैसी पॉपुलेशन नहीं है, उससे तुम मार खा गए, तो तुम्हारी क्या हस्ती है और तुमने क्या बनाया है, अब तक कुछ नहीं बनाया है। तो ये जो ग्लोरी थी रशिया की, ये पुतिन के दिमाग में लगती है। और ये कैसे पता लगता है, अमेरिकन इसको बोलते हैं ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट रिसर्च। जैसे किसी ने रिपोर्ट लिखी, किसी ने भाषण किए, किसी ने कुछ इंटरव्यू ली, वो सारे जो पेपर्स में देखते रहते हैं भाई इनकी विचारधारा क्या है। और उससे उनका ये लगता है कि पुतिन को वही खुन्नस खा रहा है कि मेरा देश, मेरा ये कैसे हो गया इतना बर्बाद। अखंड भारत हम जैसे बर्बाद करते हैं वो नहीं बना सकते। तो पुतिन ने भी अगर थोड़ी सी उसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी भी है, अगर आप उसकी एक बुक देखेंगे, उसने लिखी है जूडो जूडो के ऊपर लिखी है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, कि माइंड बॉडी का कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। और जूडो का काफ़ी चैम्पियन रहा है और काफ़ी उसने काम किया है, कि बेसिकली उसके माइंड में यही प्ले कर रहा है। इंग्लैंड को तो आप कह ही नहीं सकते, अब तो इंग्लैंड को तो अपने पास प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत मेड इन इंग्लैंड नहीं रहा। दूसरी है क्विंग डायनास्टी, ये चाइना से शुरू हुई थी और 1790 में भी 11% दुनिया को कंट्रोल करती थी। और इसका भी एम्पायर ऑलमोस्ट इधर जापान तक था, जापान से रशिया तक था और काफ़ी लंबा एम्पायर था। और हमारे जो जिनपिंग हैं, जिनपिंग, आई डिड आई गेट द नेम करेक्टली, जिनपिंग जो हैं, ये भी बार बार उस डायनास्टी को कोट कर रहे हैं कि जब तिब्बत लिया तो इसके टाइम पे था, ये लिया तो इसके टाइम पर। तो कहीं ना कहीं इनको पुरानी डायनास्टी और पुरानी जो भव्यता, शान शौकत जो रही है, वो उनके दिमाग में है कि हमें पुरानी की जो ग्लोरी है वो रेस्टोर करनी है। एक आता है नाम दूसरा मंगोल। आपने किसी को पूछो भाई मंगोल, तो बोलेगा यार कौन सी जगह पर है। लेकिन किसी ज़माने में चंगेज़ खान का जो एम्पायर चलता था वो 18% ज़मीन पे उसका राज चलता था। लेकिन अभी तक मंगोल से ऐसा कोई लीडर नहीं हुआ जिसके दिमाग में कीड़ा आया हो। इंडिया में भी एक छोटा सा था मगध एम्पायर जिसको बोलते हैं, वो इनसिग्निफिकेंट है। तो सब नेताओं को बेसिकली हमेशा हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि हम किसकी। आपने मुसोलिनी का भी नाम सुना होगा, वो इटली के डिक्टेटर रहे हैं। उनके दिमाग में ये फतूर था कि मैं जूलियस सीजर का अवतार हूँ। जूलियस सीजर तो बताने की ज़रूरत नहीं है कौन थे, उसने पूरा का पूरा लिया। और जूलियस सीजर के मैं अवतार हूँ, जो जूलियस सीजर नहीं कर सका, जो उसका इनकम्प्लीट वर्क है, मेरे को भगवान ने इटली में दोबारा उसको कंप्लीट करने के लिए भेजा है। अब इसी तरह ये जो फ्रांस के अंदर है, एक मुझे प्रेसिडेंट का नाम नहीं याद आ रहा, इसके था फ्रांस, नॉट डिगॉल थे पहले था, उसको ये था कि मैं नेपोलियन का सक्सेसर हूँ। सो ये कुछ, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं रिलीजियस माइंड के रहे हैं और हिस्ट्री में अटेंशन इनको पे की गई है। तो ये जो सारे एम्पायर, उस बेसिकली इनका एम क्या होता है, रेस्टोर द ग्लोरी ऑफ द पास्ट और टू जस्टिफाई द ग्रैंडर्स। और सारे के सारे पर्सनली इतने डरपोक होते हैं, आपको ताज्जुब होगा कि सारे के साथ बॉडी डबल होती हैं सबके पास, खाना ठीक ढंग से नहीं खा पाते हैं। हुसैन के बारे में, सद्दाम हुसैन के बारे में कहते हैं उसके शहर में 18 किचन थे और कौन से किचन में रोटली किस टाइम पे खाना खाएगा किसी को पता नहीं होता।
उसके 8 बॉडी डबल थे, पता नहीं। और ये किस्मत वाले ऐसे होते हैं। आपने फीडल कास्ट्रो के बारे में आया है, उसके बॉडीगार्ड ने जो काफ़ी साल तक था कहा कि क्या फीडल कास्ट्रो पे 600 हमले हुए हैं 30 साल में, और इनकी किस्मतें बच जाती हैं। वो बोलते हैं ना, कैट एज ए 9 लाइफ, इनकी तो हमेशा ही लाइफ रही है। तो कहीं पर जैसा कि ट्रंप कहा करता था, गॉड हैज़ चोजन मी, आई एम चोजन फ्यू बाई द गॉड, मैं भगवान ने मेरे को स्पेशल बनाया है, कोई मेरे को नुकसान नहीं कर सकेगा। हिटलर के ऊपर भी कितने, वो 40 बार अटैम्प्ट किए गए लेकिन हर बार बच निकला। कहने वाले तो यही भी कह रहे हैं कि पुतिन के ऊपर भी 8-9 हमले हो चुके हैं, लेकिन हर बार वो बचता रहा है। सो सवाल ये थोड़े भगवान के भी फेवरेट रहे हैं। अब ये काम पे आ जाएं, जो जिनका टाइटल दिया गया है हमारे वैगनर और इनके जो प्रेग्जिन, सॉरी, पहले तो मैं जो बता दूं कि सारी ये जो हमारे यूक्रेन जो 4 करोड़ लोगों का देश है, अब 4 करोड़ लोगों का देश के ऊपर ये इतना बड़ा मुल्क क्यों हमला कर रहा है, उसकी स्टैटिस्टिक्स क्या है। लैंड एरिया इतना, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत नॉमिनल है, 74 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके कंपैरिजन में आप देखिए, सिंगापुर में 8000 लोग पर किलोमीटर, हिंदुस्तान में 500 किलोमीटर, तो कोई लैंड की प्रॉब्लम उनको ख़ास नहीं है। और 78% लोग उनके लोकल हैं और बाकी 14% 15% रशियन हैं। फर्टिलिटी रेट, ये सबकी प्रॉब्लम यही है कि अगर बर्थ रेट डेथ रेट देखी जाए तो 11 बर्थ होती हैं पर 1000 और 16 मौत होती हैं। दैट मीन्स 5 मौत पर 1000 ज़्यादा हैं। तो पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली घट रही है। पिछले 20 सालों में 60 लाख की पॉपुलेशन घट चुकी है। हेल्थ सबकी फ्री है, एजुकेशन सबकी फ्री है, एनर्जी उनकी सब फ्री है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी यूक्रेन की एग्रीकल्चर में है। अब आप एग्रीकल्चर को देखिए, इसको कहा जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। 9% दुनिया का वीट वो सप्लाई करते हैं, 12% मेज एंड बार्ले, 14% तिल और 50% सनफ्लावर ऑयल दुनिया का वहाँ से आता है। और 30 नेशन उनकी गेहूं और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर निर्भर हैं, अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में। अब इतना सा कंट्री ये प्रोड्यूस करता है और दूसरी तरफ रशिया इतना बड़ा होते हुए भी क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाता। उसके पास दुनिया का कोई ऐसा मिनरल नहीं है जो आपने बुक्स में पढ़ा हो और उसके पास ना हो। पर सवाल यह है क्यों प्रॉब्लम है, मिनरल एक्सप्लोर नहीं कर पाते, उनके पास कैपिटल नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आदमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्या नहीं है रशिया के पास। और यही प्रॉब्लम रही कि जो निकोलस जो लास्ट एम्परर था वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेने को तैयार नहीं था। और रिवॉल्यूशंस क्यों हुए, क्योंकि उसके बाजू के कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी वगैरह औद्योगिक तरक्की इतनी कर चुके थे, लोग जलते थे कि देखो वो कर चुके हैं, तुम क्या कर रहे हो। सो एक किस्म का रिवॉल्यूशन जो बना वो इसी वजह से बना। अपन ये बोलते थे हम पैसा खर्च करने को तैयार हैं, राजा बोलता नहीं, तुम्हारा पैसा आएगा, हमारा कल्चर जाएगा, मेरी सत्ता के ऊपर असर पड़ेगा, तुम लोग आ जाओगे, तुम बाहर के लोग हैं। नेटिव हमारी लोकल पॉपुलेशन पे जो मिज़ोरम में देख रहे हो, मणिपुर वगैरह में देख, हमारी संस्कृति के ऊपर असर पड़ेगा। अब उनकी संस्कृति पे असर पड़ेगा, या भूखे मरेंगे लोग, वो अलग बात है। सो इसी वजह से वहाँ के लोग तरक्की नहीं। और वही चीज़ पुतिन ने भी चालू रखी है। जो पुतिन के आने से पहले क्रुश्चेव थे ये सारे, उस ज़माने में रशिया वाज ओवर डेवलप्ड कंट्री, बोलते थे कि हम बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उस टाइम के भाई डिफेंस में रॉकेट छोड़े सारे, पर क्या चीज़ थी उसके अंदर, रशिया का 25 से 30% बजट डिफेंस में जाता था। टीवी नहीं बना सकते थे लेकिन रॉकेट बनाते थे, क्योंकि टीवी बनाने की टेक्नोलॉजी, और टीवी इंडिया से इंपोर्ट करते थे। सो सारा का सारा बजट खर्च, जब
जब चीज़ें बर्दाश्त नहीं, और 91 में गोरबाचोव आया तो उसकी एक सेनेट हियरिंग हुई अमेरिका की। भाई वो गया अमेरिका के पास, भाई हमारे को कैपिटल चाहिए, इन्वेस्ट करो। अमेरिका वाले बोलते हैं तुम कंट्री तो खोलते नहीं हो, तो क्या है, तुम तो इतने एडवांस हो, ये बनाते हो। तो उसने ये कहा कि आपकी जो डेफिनेशन है ना डेवलप कंट्री की, मेरे पास आपका 7% भी जीडीपी नहीं है, जितनी आपको फिगर दी गई हैं सारी की सारी झूठी हैं। अब ये सारा बोलने के बाद उसने कहा, जब सारे देशों में गड़बड़ शुरू हो गई, सारे, क्योंकि यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूएसएसआर जिसको कहते हैं, 15 कंट्रीज़ थे वो 15 कंट्रीज़ में दर एक ने रेबल कर दिया। तो उन्होंने कहा भाई तुम नहीं रहना चाहते तो अलग से छूट जाओ। लेकिन छूटे तो गई, लेकिन ये उसके बाद जो लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद बोरिस जेल्त्सन आया, उसको तो कहते हैं कि वो तो हमेशा ऐशो आराम में रहा और उसको भी मजबूर होगा। तो बोरिस जेल्त्सन ने कहा भाई देखो, इस अगर रशिया की पुरानी ग्लोरी और भव्यता रिस्टोर करनी है, तो उसने पुतिन को पिकअप किया। पुतिन एक लेफ्टिनेंट कर्नल केजीबी में था, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस था कि राजा लोग उससे बात करते हैं। तो सब लोगों ने जब पुतिन का नाम पहली बार सुना, भाई ये टिक पाएगा कि नहीं, इसको जानता ही कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन कैसे टिका वो आपको जानते हैं, पर बेसिक प्रॉब्लम वही रही कि पुतिन की दिमाग में भी, जैसे हिटलर के दिमाग में माइन काम्फ था, भाई मेरी ये पॉलिसीज़ होनी चाहिए अगर दुनिया में हमें अपनी भव्यता हासिल करनी है और प्रॉस्पेरिटी करनी है, तो ये पॉलिसी। पुतिन को भी यही था कि जो लोग पैसा बना सकते हैं उनको बनाने दो। एंड उन्होंने जो शुरू किया वो चाइना के मॉडल से शुरू किया, जिसको बोलते हैं स्टेट कैपिटलिज्म। स्टेट इन्वेस्ट करेगी पर मैनेज प्राइवेट इंडिविजुअल करेंगे। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल से बेनिफिट मिलता है तो लो, लेकिन अगर तुम 100 बनाते हो तो 50 तो पब्लिक को तो दो। और उसके 15 साल के ड्यूरेशन में आप लगाइए कि गरीबी आधी रह गई। 12% ओनली रशियंस बिलो पॉवर्टी लाइन थे उसके ज़माने में। बोरिस जेल्त्सन और उनके बारे में 50 to 60% बाई गरीबी रेखा के नीचे थे। तो एक कम से कम उसने ये किया अपने पुतिनिज्म कैपिटलिज्म से, एक कंट्री को नॉर्मली उसने 8 या 9% की ग्रोथ लेके कंट्री को बढ़ा दिया। सो सवाल ये है कि पब्लिक, और उसकी अभी भी अप्रूवल रेट काफ़ी हाई है रशिया के अंदर आप जाएं तो क्यों, क्या है कारण? पब्लिक आपके दुर्गुणों को माफ़ करने को तैयार हैं, आप पब्लिक का ख्याल रख सकते हैं। अगर आप पब्लिक का ख्याल नहीं रख सकते, तुम्हारे शुभगुण भी माफ़ नहीं होंगे। और यही चीज़ आज से 5000 साल पहले अरिस्टोटल ने लिखी थी। पीपल जो वोटर हैं उनको चाहिए कि आप हमारा काम कर सकें। आप बहुत अच्छे हैं और किसी लायक नहीं हैं तो हमें ऐसे आदमियों की ज़रूरत नहीं है। अच्छाई ज़रूर है, लेकिन अच्छाई अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। तो ये जो प्राइवेट मिलिट्री थी ये एक इसका अंग था। तो लोगों को जब इसने कहा ना कि भाई मैं पुराना रेस्टोर करूँगा, और यूक्रेन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, जो 15 कंट्री से रशिया के बाद यूक्रेन साइज़ में सबसे बड़ा है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यूक्रेन में नहीं बनती है। बेस्ट इंजीनियरिंग, सारी ट्रांसपोर्ट, रॉकेट वहाँ बनते हैं, स्पेस व्हीकल्स वहाँ बनती हैं, मिलिट्री हार्डवेयर बनता है, और इंडिया भी वहाँ से स्टील के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। इंजीनियरिंग में सबसे बेस्ट टैलेंट। और इंडिया के मेडिकल स्टूडेंट 20,000 रिसेंटली गए हुए थे, तो वो भी वहाँ जाके पढ़ते हैं। तो आप देखिए इसका इतना जोर था। पर बेसिक प्रॉब्लम यही थी, अगर मेरे को 15 के 15 वापस लाने हैं तो मैं शुरू सबसे कमज़ोर से करूं या सबसे ज़्यादा से करूं, या उन जोग्राफीज़ को, भौगोलिक एरिया को पकड़ूं जो वल्नरेबल हैं। आपको याद होगा 2014 में इसने क्रीमिया को हथिया दिया था। क्रीमिया में जाके फोर्सेस भेजी थी, और क्रीमिया जो पूरब साउथ में है, साउथ दक्षिण में और पूरब साइड पे है, वो हथिया लिया था। वो क्या, और वो हिस्सा था यूक्रेन का, लेकिन यूक्रेन कुछ नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि क्रीमिया की पॉपुलेशन रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और जब तक मिलिट्री को लोकल सपोर्ट नहीं हो, मिलिट्री कभी टिक नहीं सकती। हमने बांग्लादेश में 15 देश में चंद्र ने वार क्यों ख़त्म कर दिया? लोकल पॉपुलेशन। अफ़गानिस्तान में 20 साल रहने के बाद अमेरिका कुछ नहीं कर सका, क्यों? लोकल पॉपुलेशन। वियतनाम में झक मारी अमेरिका ने करोड़ों का, लोकल पॉपुलेशन। लाओस में क्या? लोकल पॉपुलेशन। सो अगर मिले, या तो
चंगेज खान की तरह मंगोलियन ने कहा था जो टेरिटरी जीता उसका ध्वस्त कर दो, वो तो कर नहीं सकते। तो यही थ्योरी रही है कि लोकल पॉपुलेशन ने उसको वहाँ सपोर्ट किया और वो चुपचाप रह गई। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा हाथ इसी महाशय का था, वैगनर प्रेगजिन्स का। रशिया के रेगुलर ट्रूप्स नहीं थे, रेगुलर ट्रूप्स वो जस्ट दिखावे के लिए थे। और ये ट्रूप्स जो हैं आप देख लीजिए, कहने को तो ये प्राइवेट आर्मी है, इसके पास टैंक्स हैं, इसके पास प्लेन्स हैं, इसके पास सबमरीन्स हैं, इसके पास हॉविट्ज़र्स हैं, सब जो मिलिट्री रेगुलर होता है। और कहाँ किसने सप्लाई किए और पैसा कहाँ से आया और इसका दूसरा रोल क्या है, इसके पास दूसरा निकल क्यों गया, आवाज़ से नहीं गिर गया। एनीवे सॉरी। तो सारे इसके पास हथियार जो मिलिट्री रेगुलर हैं, तो क्या, और सवाल ये मैन पावर कहाँ से आती है। इसके पास कम से कम 30-40 कंपनियां बना रखी हैं और ये सारे के सारी जो प्राइवेट में कारपोरेट स्टाइल में होते हैं, हायर एंड फायर। आपकी ज़रूरत है आज आप लेंगे, नहीं है नहीं जाएंगे। तो इन्होंने सारी की सारी कंपनियां जिस मुल्क को सूट करती हों वहाँ के लोगों को रिक्रूट करते हैं, जिनको बोलते हैं NGOs, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट सपोर्टेड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वट एवर दैट वर्ड दैट मीन्स। तो इसने इतना एम्पायर फैलाया। अब जो सैंक्शंस हैं उसको काउंटर कौन कर रहा है, इसी महाशय की वजह से हो रहा है। इसके पास डायमंड, वेस्टर्न नॉर्दर्न और ईस्ट अफ्रीका में माइंस काफ़ी हैं डायमंड्स की। अगर आपको याद होगा तो सूरत में पिछले दिनों 2-3 साल पहले आर्टिकल आए थे कि सूरत वालों के पास जो डायमंड आ रहे हैं वो ब्लड डायमंड्स हैं। क्या मतलब ब्लड डायमंड्स का? ये इसी तरह लोगों उसके लोकल हिटलर्स को, लोकल डिक्टेटर को फंसू कर किसी तरह करके वहाँ से माइनिंग करता है, लेके आता है और इंटरनेशनल बाज़ार में बेच के। सो जितना अमेरिका ने सोचा था कि हम सैंक्शन इम्पोज कर देंगे और 2 महीने में रशिया घुटनों पे आ जाएगा, वो क्यों नहीं आया? इस महाशय की वजह से। ये ऐसे लोगों का पॉजिटिव रोल होता है। दूसरा चीज़ जो बोलते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है, कि जो रेगुलर मिलिट्री नहीं कर सकती वो ये कर सकते हैं। अगर किसी को खून करवाना हो या कराना हो तो इर्रेगुलर वार में ये काम आते हैं। और यही इर्रेगुलर वार की वजह से इनकी इम्पोर्टेंस दी गई है। जब पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि पुतिन ने स्टेटमेंट दिया जब मार खा रहे थे कि वी आर पुटिंग मोर आर्मी इनटू इट, इस बंदे ने 50,000 वॉलंटियर्स इकट्ठे कर लिए 15 दिन के अंदर। ओरिजिनल इसके पास 10 थे, 50,000 कहाँ से लाया? इसने स्कूलों के बोर्ड के ऊपर और सब जेल के कैदी जो हैं इसने उसके छुड़वा के बोला चलो। आपने शायद फिल्म देखी होगी डर्टी डजन और 5 मैन आर्मी, कुछ ऐसा ही इसने किया। अब जिनको मतलब बंदूक का ये नहीं मालूम नहीं नली किस तरफ है, उनको आप झोंक दो 1 वीक के बाद, तो वो बोलता मेरे 20,000 आदमी मर गए हैं। और पुतिन ये कह सकता है कि भाई मेरी आर्मी के आदमी नहीं मरे हैं, अब टोटल आर्मी लगाओ तो 1 लाख मर चुका है। पुतिन कहेगा मेरी आर्मी के तो 20,000 मरे हैं, बाकी इसके मरे हैं। सो एक किस्म का जो आपकी इमेज लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं वो इन लोगों की वजह से आप कर सकते हैं। सो ये एक किस्म के यूज़फुल आदमी रहते हैं। इसी तरह अब आगे एक सवाल ये है कि एक जो जिसने मार्च करना शुरू किया मॉस्को की तरफ, क्यों मार्च करना शुरू किया? कंपटीशन हर एक जगह होता है। तो रेगुलर आर्मी इसकी जो चढ़ती पतंग थी उसको उतारना चाहते थे रेगुलर आर्मी वाले, वो चिढ़ गए। अब रेगुलर आर्मी भी रेगुलर तो नहीं होती है, रेगुलर आर्मी में भी डिफेंस मिनिस्टर का ग्रुप है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अपना ग्रुप है, पुतिन का अपना ग्रुप है, और तीनों ही एक जगह पर हैं। तो उनके अंदर भी आपस में खींचातानी रहती है। तो इसने कहा कि मेरे सोल्जर्स को मार दिया गया है। तो एक कमांडर पकड़ के उसका वीडियो उतारा। उसने कहा भाई तुमने क्यों उतारा? क्या कि मुझे नफ़रत है, ये आदमी जो है मुझे इसकी आर्मी से नफ़रत है, इसके तरीक़ों से नफ़रत है, इसलिए मैंने इनको ऑर्डर दिया कि मार दो। तो उसने के जो स्टेटमेंट दिया था कि मेरे 20,000 आदमी रशियन रेगुलर आर्मी ने मारे हैं, इसलिए मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ और मॉस्को जाना चाहता हूँ। पर मॉस्को में फिर गया नहीं, क्योंकि जो इसकी सप्लाई लाइन्स थी रोस्तोव में, जो बॉर्डर का टाउन है रशिया का, उसके ऊपर रेगुलर आर्मी ने जो पुतिन फैक्शन थी बम्बार्ड करके पूरा डिसेबल कर दिया।
और जो अगर उसने वीडियो की फ़ोटोज़ का एनालिसिस करके बताया है कि उसमें सिर्फ एक ही टैंक है, बाकी सब बस्तर-बंद गाड़ियाँ ही हैं। अब एक टैंक से तो मॉस्को कैप्चर कर नहीं सकते थे, तो उसको रिट्रीट करना पड़ा। और ये भी हाइडिंग में चला गया था पुतिन, भाई शायद हो जाए, क्योंकि पुतिन की भी जो मॉस्को में 6-7 एजेंसियाँ हैं जो मॉस्को की प्रोटेक्शन करती हैं इंडिविजुअली। FSB, ये वो काउंटर मिलिट्री, MI6, MI7, वो आपस में एक दूसरे पर रहते हैं, सो किसी को भरोसा नहीं कि कौन लीक कर देगा। तो जब उसका ख़त्म हो गया जो फ्यूल था, तो दूसरा उनका कहा फ्यूल नहीं सप्लाई करेंगे हम तेरे को, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वापस आ नहीं सकता। तो वो शराफत से वापस आ गया और रोस्तोव में जाके कहाँ बैठता है, जहाँ रशिया की मिलिट्री कमांड है, जैसे नॉर्दर्न कमांड है, ईस्ट कमांड है, नॉर्दर्न कमांड उसके हेडक्वार्टर में जाके अंदर बैठता है और क्या बोलता है, डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो मेरे से आके मिले। बोलो भाई, तुम्हारी इतनी हैसियत कि डिफेंस मिनिस्टर को बोलते हो मेरे से आके मिलो। ये तो हिंदुस्तान की फिल्में होगी, दारू वाला बोलता है पुलिस इंस्पेक्टर को मेरे को यहाँ आके मिल। तो वो जो चीज़ थी उसकी वजह से ये सारा फीका पड़ गया। दूसरी चीज़ ये हुई कि पुतिन भी अमेरिका है सॉर्ट ऑफ ट्रेंड, जिसको बोलते हैं ना कारपोरेट स्टाइल से रन कर रहा है। हर एक की डिफेंस मिनिस्टर की अपनी प्राइवेट आर्मी है, वो भी बीच में घुसी हुई है। तो इस वक्त रशिया में कम से कम 7 या 8 प्राइवेट आर्मीज़ हैं ऐसी। डिफेंस मिनिस्टर की अपनी आर्मी है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपनी आर्मी है, वो सारी सपोर्ट होती है। उसके बाद एक रशिया की है गैसप्रोम करके, जो इंडिया रशिया का पूरा ऑयल, और रशिया की ऑयल कैपेसिटी आप समझिए सारे यूरोप को सप्लाई कर दे, और बंद कर दे तो पूरा यूरोप ठंडा हो जाएगा। तो इतनी गैसप्रोम की अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, वो भी पुतिन के फेवर में लड़ रही हैं जाकर। तुम्हारा काम है ऑयल इंस्टॉलेशंस को, बट वहाँ भी यही है अग्निवीर होने चाहिए तो जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। सो आइडिया इज़ यू हैव गॉट सम सॉर्ट ऑफ ए फाइटिंग रिजर्व फोर्स। और मुझे ताजुब नहीं होगा जैसा दत्त साहब ने कहा कि अग्निवीर वहीं से ही आया है, तो बिल्कुल मुझे भी वही लगता है कि अग्निवीर वहीं से ही आया। इस वक्त कन्वॉय है डिफेंस मिनिस्टर की, पैट्रियोट है रशियन की, प्रोस्क्रैम इसकी है स्पेस की। सो हर एक के पास अपनी अपनी प्राइवेट आर्मी है और उनमें भी खींचातानी है। तो जब इतनी खींचातानी हो रही हो तो किस तरह की फोर्स लड़ सकती है? तो नेचुरली ये ही डर लग रहा है कि यूक्रेन काउंटर स्ट्राइक नहीं कर दे। अगर उसने काउंटर स्ट्राइक किया तो रशिया की किरकिरी होने वाली है। और दूसरी चीज़ कि जब जैसा मैंने शुरू में कहा कि 2 लाख लेके सोल्जर्स आप अटैक नहीं कर सकते। जनरल मानक शाह ने जब बांग्लादेश अटैक किया था, फील्ड मार्शल हो गया बाद में, उसने एक अर्थमेटिकली एक आर्टिकल नहीं लिखा था कि अटैकिंग आर्मी हैज़ टू बी 3 टाइम्स द लोकल आर्मी, तभी तुम जाके अटैक कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, तुम मार खा जाओगे। तो इसकी तो आधी भी आर्मी नहीं है। अब अंदाज़ा लगाइए कि जब रशिया की जब ये 91 के अंदर जब ये 15 की 15 रिपब्लिक सेपरेट हुई, 7,80,000 रशियन आर्मी किसका खा रही थी? यूक्रेन का। सो यूक्रेन वाज सपोर्टिंग द एंटायर रशियन आर्मी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता हटती चली गई। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़ेलेंस्की भी थोड़ा सा अनईजी है, क्योंकि उसको डर है जैसे क्रीमिया में को छोड़ना पड़ा बिकॉज रशियन लोकल पॉपुलेशन की, इसकी अपनी पॉपुलेशन 17% जो है रशियन स्पीकिंग है एंड दे आर प्रो रशियन। उसका नाम लेकर ना अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज ट्रेडिशन क्या यूज़ कर रहा है, रेस्टोर जस्टिस। जो रशियन भाइयों पे अत्याचार हुआ है, न्याय नहीं हुआ, वो न्याय दिलाने के लिए मैं फोर्स लेके आ रहा हूँ। क्रीमिया पे उसने कहा कि हमारे ये ज़ेलेंस्की जो हैं ये हमारे रशियन भाइयों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, मैं उनको बचाने के लिए वहाँ पर आया हूँ। वहाँ चल गया तो प्रो रशियन थे। अब ये जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी यही चल रहा है कि भाई हमारे पास इतने फोर्सेस हैं और 17% भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट इतना है कि अगर आपको ऑफेंसिव लेना है तो योर आर्मी शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। वो नहीं है। रशिया को भी मालूम है ये पूरा हमला नहीं कर सकता है, तो वही उस सेफ हेवन में बैठा हुआ है जहाँ से छुटपुट जाके गुल्ला जाएगा, हमला करके वापस आ जाएंगे। सो छुटपुट हमला करके मिसाइल फाड़ो, वापस आ जाओ। और इसमें नाटो का क्या रोल आता है? नाटो की ये प्रॉब्लम है कि सबसे ज़्यादा फसाद की जड़ जो है वो बुश रहा है या ये रहा है, बाइडन भी है। क्योंकि
यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन और नाटो ज्वाइन करना चाहता है। रशिया ये नहीं चाहता। पोलैंड मतलब आगे ऑलरेडी 6 कंट्रीज़ जो हैं रशिया को नाटो वाले घेरे हुए हैं। ये 7वां कंट्री हो जाएगा। वो तो छोटे छोटे कंट्री हैं। ये तो मेन इंजीनियरिंग कंट्री है जिसके पास फुल टेक्नोलॉजी है। अगर ये भी चला गया तो पुतिन बोलता है मैं तो चारों तरफ से घिर जाऊंगा। अगर मैं चारों तरफ से अमेरिकन फोर्सेस से घिर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। सो ये यूरोपियन यूनियन की हालत है कि और इस वक्त ये है कि 60% इसका ट्रेड जो है यूक्रेन का यूरोपियन यूनियन के साथ है, रशिया के साथ नहीं है। और जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ 2014 में जबकि प्रेसिडेंट को डिसमिस किया गया, वहाँ का प्रेसिडेंट भी यही था। उनका चाहता था वो रशियन फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, लेकिन पब्लिक जो है वो वो अमेरिकन फ्रेंडली है, जर्मन फ्रेंडली है और नाटो फ्रेंडली है। सो वहाँ भी बीच में बोलते हैं डिसरप्शन है सरकार में। और ये ज़ेलेंस्की जो है ये प्रो वेस्टर्न है, बिकॉज यहूदी है, ये भी जू आदमी है। क्योंकि उससे पहले वर्ल्ड वार के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा जू की पॉपुलेशन ज़ेलेंस्की इसके पास थी, यूक्रेन में थी। और अप्रॉक्सीमेटली बोलते 4-5 लाख यहूदी यहाँ पर स्लॉटर किया गया। सो यूक्रेन जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसने वार नहीं दी। अगर आप इसकी हिस्ट्री, यूक्रेन कहीं ना कहीं लड़ता ही रहा है। चंगेज खान आया, स्लाव आए, तो उसको लड़ाई उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे हो सकता है गुजरात के लिए या महाराज लड़ाई ना हो, पंजाब के लिए तो हमेशा होते ही आए हैं। उनके लिए तो लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। इनफैक्ट मेरे को एक अहमदाबाद में क्योंकि मेरा पड़ोसी था एयरफोर्स में, तो उसने कहा यार हमारे को जब पाकिस्तान 71 में वार थी हमें खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। भाई क्यों सप्लाईज लाइन नहीं, वहाँ के विलेज गाँव वाले लोग हमारे परोठा देने आ जाते थे। इमेजिन बॉर्डर पे वॉर चल रही है और वहाँ के लोग मिठाई खाना लेकर मिलिट्री बैंक में पहुँच रहे हैं। सो ये है एक साइकोलॉजिकल बेंड, बहुत से नहीं डरने वाला। सो यूक्रेन का भी यही हाल है, वो किसी ऐसे डरने वाला नहीं है, उसकी फोर्स बहुत हार्ड एंड फोर्स है। अब इसके बाद ये वैगनर क्या कर दिया, वैगनर के बाद अब बाकी कंट्रीज़ में भी शुरू हो गई है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अमेरिका को देखा जाए इराक में इसीलिए आई क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं कर सके डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर को। अफ़गानिस्तान में भी यही प्रॉब्लम थी। जहाँ पर पब्लिक के साथ इंटरफेस होता है वहाँ वायलेंस शुरू हो जाती है, क्योंकि इनके ऊपर कायदा कानून कोई लागू नहीं है। ये बेहिसाब से बिना घोड़े लगाम के घोड़े बन जाते हैं और पर्सनल कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सो जहाँ पर ये गए हैं ना मार्शल सो कॉल्ड PM, वहाँ प्रॉब्लम रही है। अब ये तो रहने वाली है। और ये इस वक्त कारपोरेट स्टाइल आउटसोर्सिंग, बेस्ट आउटसोर्सिंग तो सब जगह चल रही है। जैसे सचिवालय का ले लो या यहाँ ले लो। और मेरे को एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल याद आती है, मुझे मीनाक्षी बहन माफ़ करेंगी, कि आउटसोर्सिंग ये जो सरोगेसी का लॉ पास किया है, मेरे हिसाब से ये भी आउटसोर्सिंग है। शादी हम करेंगे, बच्चा दूसरा पैदा करेगा, ये भी एक आउटसोर्सिंग यहाँ तक आ गया। स्विगी, जोमेटो, ये सब आउटसोर्सिंग हो गई है। हम सिर्फ कोर फंक्शन मेंटेन करेंगे। और जो इंडिया ने, मोदी जी ने कहा था कुछ कि हम डाउन साइज कर रहे हैं आर्मी को, क्यों? एजुकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इतना 60% जो इंडियन आर्मी है वो इन चीज़ों की है जो नॉन फाइटिंग एक्टिविटी है। तो नॉन फाइटिंग एक्टिविटी जो है वो क्यों आर्मी में रखी जाए? उनको अलग ही कर दो ना, लेट देम इन सिविलियंस, व्हाट आर देयर यूज। सो ये जो कन्फिगरेशन चल रहा है इसके हिसाब से जो एंड सबसे ज़्यादा फास्ट इस वैगनर ने दी है कि भाई ये वार जो है फ्यूचर वार, जो अमेरिकन की एक थिंक टैंक है रैंड कारपोरेशन, वो जैसे हमारे यहाँ विवेकानंद है, एवरीथिंग विवेकानंद फाउंडेशन करती है, उसकी रैंड फाउंडेशन है, उसकी काफ़ी ऑब्जर्वेशन और बहुत डीप एनालिसिस करते हैं। तो उसने कहा ये PMC की वजह से, प्राइवेट मिलिट्री कॉरपोरेशंस की वजह से दुनिया भर में ब्लड शेड बहुत होंगे, खून खराबे बहुत होने वाले हैं अगर कंट्रोल नहीं किया गया। ये छोटे छोटे राजा लोग और छोटे छोटे पिटली लोग हैं, ये बहुत ही ख़राब करने वाले हैं, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि इसका सेंटेंस ये है, मॉस्को इज़ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रशियन PMC डेवलपमेंट्स। और ये अगर आपको ताजुब नहीं होगा, मुझे जो लग रहा है जो सरकार NGOs के फंड्स के ऊपर कंट्रोल कर रही है, ये जो काफ़ी रिटायर्ड मिलिट्री संस्थाएं हैं ना, रिटायर्ड सैनिक संघ और ये जो NGOs मिलिट्रीज़ की बनती हैं,
ये भी इनडायरेक्टली वैगनर की सपोर्टेड है। अब जो लेफ्टिनेंट जनरल का इंचार्ज होगा वो हो सकता है उस पर हो, अब नीचे सोल्जर जो हैं उनको नहीं पता होगा। ये भी जो संस्थाएं हैं जहाँ पर मिलिट्री स्पेशल है, ये भी इसी वैगनर की है, क्योंकि ये आदमी काफ़ी होशियार है, हिटलर जैसा ही है कि वर्ल्ड वाइड उसकी एम्बिशंस हैं कि मैं वर्ल्ड वाइड कंट्रोल करूं। एट ए टाइम इसको ये था कि मैं पुतिन को फेंक के कंट्रोल कर लूँगा, पर जब पुतिन ने जो उसको बम्बार्ड करके पैरालाइज कर दिया तो हट गया। इसका एम वही था कि अब मैं कम चुका हूँ, पुतिन को मैं उड़ा दूंगा, पर पुतिन भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। अब सवाल ये है कि वॉर के बाद अगर ख़त्म होती है तो किस तरह से ख़त्म होगी, उसके अंदर प्लेयर कौन है? अमेरिका, रशिया, यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन। हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? बिजनेस इंटरेस्ट है, बिकॉज यार सबसे ज़्यादा अगर उसको वहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेता है यूक्रेन के ऊपर एक बेस, तो रशिया पूरी तरह से घिर जाएगा और बिज़नेस भी उसका पूरा एशिया में जा सकता है। बिकॉज इनफैक्ट वर्ड यूक्रेन का मतलब ये है बॉर्डर लैंड, स्लैविक भाषा में इसका मतलब बॉर्डर लैंड। सो ये बॉर्डर 3-4 संस्थाओं का या कंट्रीज़ का या कॉन्टिनेंट्स का बनता है। इसके समुंदर भी काफ़ी इतनी छोटी सी एरिया में काफ़ी कुछ है। तो अमेरिका ये चाहता है। यूरोप क्या चाहता है कि अगर ये हमारा ट्रेड होगा तो वी कैन ट्रेड बेटर। रशिया चाहता है अगर ये गया तो मैं डूब गया, बिकॉज टुडे जो रशिया जो गैस सप्लाईज करता है यूरोप को, उसकी पाइपलाइनें यूक्रेन से जाती हैं और उसका कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांजिट फीस भरता था, वो ट्रांजिट फीस कम हो गई है। उसका ये इंटरेस्ट है, यूक्रेन का इंटरेस्ट है। डिस्पाइट बीइंग सो मच कॉम्पिटेंट ऑन इकोनॉमिक पैरामीटर, पुअरेस्ट कंट्री ऑफ द यूरोप। अब इतना देखते हुए आप ट्रेड देख रहे हैं और स्टिल इट इज़ द पुअरेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप। ये विडंबना है कि नहीं? कारण क्या है इतनी विडंबना? रशिया की सेंट्रल अथॉरिटी इनसे माल सस्ते में खरीद के महंगे में बाहर बेचती हैं। प्रॉफिट धनवंतरी जो धन इसके पुतिन के कुबेर हैं उसके जेबों में जा रहा है। ये अपने उसको कटक कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो अभी देखना है कि अब सवाल यह अमेरिका, रशिया और ये पुतिन क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट करते हैं, कितना तक जा सकते हैं, कितना तक जाने की हिम्मत है इनकी, या वही छुटपुट लड़ाइयाँ करते रहेंगे। इसका किसी के पास, जितने भी लेख मैंने पढ़े, किसी के पास कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। ये डिपेंड करता है कि लीडर्स के फतूर क्या है। मैं इससे अपना कंक्लूड करता हूँ।